Good evening and welcome everyone to this session on Indian economy, monetary policy, second PPT we are going to refer to. We are going to understand these topics, tools of monetary policy which we have already covered. So just a recap of these things, then growth inflation trade-off is also something that we've already covered. Limitation of monetary policy. Limitations क्या है monetary policy की? Theoretical points these are. Some of these topics were given to you as homework. Okay, so you must have read it at least once. I'm sure that most of you guys must have read it. So इसके बाद हम start करेंगे the monetary policy, the third part of the PPT. Alright. तो start करते हैं. किसी को कोई doubt इसमें जो पिछले दिनों हमने ये topics cover किए थे? Quantitative tools, change in margin requirements, all these things were covered. 90% of these things were covered. All right. So monetary policy and fiscal policy are the two types of economic policies which are followed by the RBI and the government respectively, which are implemented by RBI on one hand and the government on the other. Done. So this is their Forex Reserve. Good evening, Forex Reserve. Forex Reserve. Active policy, overall expansion, seasonal variation, tight and dear monetary policy, investment and savings oriented, imbalance in credit allocation, wide range of credit control, guiding factors, ये सारा कुछ. Active policy. Before the advent of planning in India, the monetary policy of the Reserve Bank was passive, cheap and easy policy. It means that Reserve Bank did not use the measures of monetary policy to regulate the economy. But since 1951, Reserve Bank has been following an active monetary policy. It has been using all the measures of credit control, overall expansion, seasonal variation, ये सब चीजें हैं इसमें. Now, in the busy season, there is an expansion of funds on the account of seasonal needs of financing, production and inventory building of agricultural commodities. ये सारा कुछ बोल बच्चन टाइप है. Tight and dear monetary policy. Please explain. Debit financing नहीं है, debt financing है. Debt financing simply means debt यानी कि कर्जा, उसको फाइनेंस करता हुआ बैंक. Right? Debt financing. This is the meaning of it. We will be seeing this in the fiscal policy. A tight monetary policy implies that rate of growth of money supply is lowered. A dear monetary policy refers to increase in the bank rate और repo rate. ये सारा कुछ जो हम देख चुके हैं पहले ही. किसी का कोई और डाउट? अनिकेत, आलोक, प्रिया, विवेक. Alright, so consequently ये सारा कुछ सेम चीजें हैं. Wide range of methods of credit control. RBI has adopted all the measures of quantitative and qualitative credit controls to meet the need of a complex and varying economic situation. Inflation is a tax. How inflation is a tax? Please explain how inflation is a tax. Now, कुछ और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो. देखो, इन्फ्लेशन टैक्स कैसे है. अगर टोटल पैसे इकोनॉमी में थे 15 लाख करोड़, ठीक है, 15 लाख करोड़, एंड यू वर गेटिंग अ टोटल मनी इन द इकोनॉमी वाज दिस. Total money is this. Now, if total money supply is this and a person A in the year 2019, he was getting a salary of 20,000 rupees. Right? Next year, government, I am explaining some extra things also. Government printed extra money. Printed money plus 15 लाख करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी हैं, 2 लाख करोड़ रुपीस और गवर्नमेंट ने प्रिंट कर दिए. कितने हो गए?
17 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, करोड़ लिख देते हैं। अब इस पर्सन ए की इस सिचुएशन में जो इनकम है, पर्सन ए इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 22,000 रुपीज। पैसे इंक्रीज हुए, टाटा स्टील में ये पर्सन काम करता है, इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई 20,000 से 22,000 रुपीज। बट द सेम ईयर the potatoes that he was able to buy, his total family budget was potatoes, onion, tea powder, everything, ठीक है। Same year he was able to get all this entire stuff. He was able to buy, previous year this stuff was of 15,000 rupees. Next year this same stuff, the rupees value increased to 17,000 rupees. Now what is the, previously he was able to save how much? If 20,000 is the income, 15,000 is the expenditure on the same items, his saving is going to be 5,000. Now this year, because inflation has increased, the same items are costing him 2,000 more. His saving is going to be in this year 22,000 rupees minus 17,000 rupees. Got it? How much is he going to save? 5,000 only. So inflation is a tax. How has inflation increased? How has inflation increased? Inflation has increased because government has printed more money. More money. गवर्नमेंट या तो आप लोगों से 15 लाख रुपए देके 10% टैक्स वसूल ले, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा चला ले, और गवर्नमेंट कैन डू व्हाट? This is called as, printing of more money is called as monetization of deficit. Monetization, deficit को monetize कर दिया, money print कर दी। Clear? This is called as charging more tax. दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, या तो ये कर ले गवर्नमेंट, खर्चा बढ़ रहा है तो, या फिर ये कर ले। अब जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट। बट इफ गवर्नमेंट गोज फॉर दिस ऑप्शन, if the government goes for this printing of new money option, then supply of money is increasing. More supply of money is leading to an indirect kind of a tax. It's not a tax for the government, it's a kind of revenue for the government. ठीक है, revenue for the government. नया पैसा क्रिएट कर दिया, पैसा ही नया क्रिएट कर दिया तो फिर तो ये वो हो गया ना कि इसमें फायदा ज्यादा सरकार को हो रहा है, लेकिन लोगों को पैसे, सैलरी ज्यादा दी जा रही है, मनरेगा वर्कर्स को सैलरी ज्यादा दे दी, लेकिन क्या मनरेगा वर्कर्स को उसका बेनिफिट हुआ? नहीं। सिचुएशन तो सेम की सेम है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर सरकार ये 15,000 की जगह, जो सैलरी 20,000 की जगह 2,000 रुपीज इंक्रीज कर रही है, इसकी जगह तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती कि 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स ही ले लेती, सिचुएशन तो सेम ही आती। Yes, you can say that inflation is a hidden tax. Inflation is a hidden tax and monetization of deficit. This is a part of fiscal policy. Okay. Is this clear to everyone? How this operate? How this functions? Government printing more money leads to more supply of money in the economy. If the supply of money in the economy is more, it will lead to more money chasing same amount of goods. Same goods. If same goods are being chased, this will lead to problem. ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं था, बट ठीक है, दोनों में ओवरलैपिंग है तो बता दिया। Since the objective has to be
objective has been to achieve economic growth with stability, the policy of monetary management has gone beyond the traditional regulatory function. It has adopted a more positive role of channeling credit to desired sectors. Guiding factors, according to Mr. C. Rangarajan, following three factors have essentially guided the conduct of monetary policy. Monetary policy measures have generally been responsible to fiscal policy. मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा फिस्कल पॉलिसी को कोरोबोरेट करती है, ठीक है. देन व्हाइल मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन प्राइमरली एक्टिंग थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट हैज आल्सो बीन एडजस्टेड अपवर्ड्स, sometimes very sharply, to meet effectively the inflationary situations. The areas of operation of monetary policy did not remain confined to those related to regulation of monetary authority in the allocation of credit to non-government sector. Areas of operation of monetary policy are not limited to those areas which are related to regulation of monetary authority in the allocation of credit to non-government sector because of an important element of national economic policy. तो हमारे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी जैसे नहीं रहे, मॉनेटरी अथॉरिटी वाले नहीं रहे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो क्रेडिट एलोकेशन है वो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में एक अहम रोल प्ले किया जा रहा है, राइट. उसके जरिए एक अहम रोल प्ले किया जा रहा है जो रोल दूसरी कंट्रीज में नहीं देखा जाता. नो, दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. ये समझ में आया. इंडिया में एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी इन द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट to non-government sector, to private sector, because in India an important element of national economic policy is being played with the help of monetary authority, RBI. Now प्रियंका, आपका जो क्वेश्चन है, देखो मैं फिस्कल डेफिसिट इसीलिए ना जो चीज़ जहाँ की है वहीं पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी. यहाँ पे देखो, monetization of deficit has been stopped in India, right. अब अगर गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी. अब जो एक्सपेंडिचर है वो है 24 लाख करोड़ रुपीस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब इनकम ऐसे नॉर्मल इनकम जो है टोटल करके वो आ रही है टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, वीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार ने शेयर बेच दिए, एलआईसी बेच दी, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, ठीक है, खुद को भी बेच दिया. तो ऐसे केस में कितने पैसे इकट्ठे हो गए, सारा कुछ डिसइन्वेस्टमेंट और 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम सारा कुछ बेच दिया, ठीक है. कितने हो गए, 20 लाख करोड़ रुपए. अब रिमेनिंग 4 लाख करोड़ रुपीज़ कहाँ से लाए जाएं. 4 लाख करोड़ रुपीज़ के लिए या तो आप एडिशनल टैक्स या वर्ल्ड बैंक से बोरो करोगे, ठीक है. डेफिसिट को फिनेंस करने के 3-4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट. दिस इज व्हाट प्रियंका इज आस्किंग एंड शी इज राइट, ठीक है. मैंने एलैबोरेट करके बता दिया. मोनेटाइज मतलब नई करेंसी छाप दी. मोदी जी ने इस बार सोचा अपने नाम से नोट छाप देता हूं और हो गया नवीन भारत, ठीक है. ये है. वर्ल्ड बैंक से बोरो करोगे या टैक्स एक्स्ट्रा लगाओगे तो क्या होगा, वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा, टैक्स एक्स्ट्रा लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी. लेकिन जब इसको मोनेटाइज किया जाएगा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो मतलब रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सेम अमाउंट ऑफ मनी, रुपए की वैल्यू वीजा वी डॉलर डिक्रीज हो जाएगी, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था उसको लेके. क्लियर, डन. सो दिस इज देयर. So this is how it works. Clear है? This will is definitely this is going to increase inflation because the supply of money is increasing in the economy. Clear? That is why we have put a moratorium on a complete stop on printing of new currency in the economy. इसीलिए आरबीआई क्या कहता है, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन. एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन कैसे होगी, यू शुड प्रिसाइजली टारगेट दी सब्सिडीज.
ब्रिंग इट डाउन टू 22 लाख रुपीज। और दिक्कत ये नहीं है, 24 लाख रुपीज भी रहने दो, जिसके पास नहीं है उसको दो, क्योंकि वो कम खर्चेगा या वो सही चीजों पे खर्चेगा। जिसके पास है उसको दोगे, वो क्या करेगा, गोल्ड लेके आएगा। गोल्ड लेके आएगा तो क्या होगा, इंपोर्ट डेफिसिट बढ़ेगा। इंपोर्ट डेफिसिट मतलब इंडिया का रुपया इंडिया में रह ही नहीं रहा, वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की सप्लाई ज्यादा होगी। इंटरनेशनल मार्केट इज लाइक, इमेजिन अ बिग ओशन, ठीक है, अरेबियन सी या कुछ, वहां पे अगर रुपए बहुत सारे तैर रहे हो, डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर कम है, रुपया बहुत सारा तैर रहा है, तो आप रुपये को पकड़ोगे या डॉलर को? डॉलर को। रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। उसी मछली को पकड़ते हो ना जो सबसे ज्यादा दिखती है, नहीं, जो सबसे कम दिखती है ना, जो सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है, राइट। सुंदर वही दिखती है जो कम होती है, बात सिर्फ यही है। सब आंखों का धोखा है ना। एक्सपेंडिचर रेशो, टारगेट दी सब्सिडीज, कैसे, जनधन, आधार, मोबाइल, ट्राइनिटी, एलिमिनेट दी वेस्टफुल सब्सिडीज, दिस इज व्हाट दे से। गाइडिंग फैक्टर्स और ये सब क्लियर। Monetary policy and fiscal policy refer to the two most widely recognized tools used to influence a nation's economic activity. Monetary policy is primarily concerned with management of interest rates and total supply. अब देखो, I am assuming Monica, printing of money is so easy as we don't have our own gold. It's not that easy now. Repercussions मैं बता देता हूँ. If you print more money, I am dealing with this topic here only. मूडीज का मूड हो जाएगा खराब। क्यों? क्योंकि आपने मोनेटाइज कर दिया, ठीक है, आपने किया मोनेटाइज, मूडीज ने कर दी रेटिंग खराब आपकी। क्यों? क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू डाउन है। अब आपके रुपए की वैल्यू अगर डाउन होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, श्रीलंका, जो हमारी करेंसी में थोड़े बहुत रिजर्व रखे हुए हैं, आपने उनका तो बैठे बैठे नुकसान करवा दिया, है ना। उन्होंने ये सोचा कि रुपी एक विश्वास का पात्र है, रुपीज वैल्यू विड नॉट गो डाउन, बट आपने उनका नाम खराब करा दिया। तो इसलिए रुपी को पब्लिक प्रिंट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाती है। फिर हमारा रुपी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी, उनको लगेगा रुपी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए ये नहीं करना होता। इट्स नॉट दैट इजी, इट सीम्स टू बी इजी बट इट इज नॉट। Clear? It has got negative fallouts. Clear? So this is there. Now, coming to the other aspects, since the objective has been to achieve economic growth with stability, policy of monetary management has gone beyond the traditional रेगुलेटरी फंक्शन। हमारे यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं कर रहा, बहुत सारे और फंक्शंस कर रहा है। जैसे आजकल आप कोविड-19 के टाइम पे देखते हो ना, आरबीआई एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर को अपलिफ्ट करने में लगा हुआ है ना, कि इस सेक्टर से ग्रोथ आ जाए, उस सेक्टर से ग्रोथ आ जाए, ये सब चल रहा है यहाँ पे, राइट। Now it has adopted a more positive role of channeling the credit to the desired sectors. Guiding factors, so these things are there. Monetary policy measures have generally been a response to the fiscal policy. While monetary policy has been primarily acting through availability of the credit, the cost of credit has also been adjusted upwards, sometimes very sharply, to meet effectively the inflationary situations. इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए सिंपल सी चीजें हैं। मैं पढ़ाऊं क्या इन्हें या नहीं? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन? प्लीज टाइप EXP. प्लीज टाइप EXP. This is the table for you to understand this.
हाँ, अब एक दो टर्म्स हैं तुम लोग जो बोल रहे हो, कितनों को लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब समझ में आ गया ये बताओ। लिक्विडिटी ट्रैप, okay, Deep Jyoti, I will explain the terms which are like this. Okay, I am also keeping a tab on these things. देखो, liquidity trap एक ऐसी situation होती है जब सेविंग्स रेट्स आर वेरी हाई। लोग, मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, जब लोग जो है सेव तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी समझ लेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी ट्रैप, और ये बनाते जाना मेरे साथ साथ, पहले फोकस अंडरस्टैंडिंग पे, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर सेविंग, दे आर इंक्लाइंड टू सेव, बट they are not investing in the banks or other institutions. They are saving, but saving का एक part होता है ना investment. They are not converting their saving into FD, or they are actually not committing their money for long term. They just want the ease to withdraw this. Other things ignore this, e-sweep और ये सब, ठीक है। Now मॉर्गेज में, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, किसी चीज को गिरवी रखना। मॉर्गेज मींस प्लेजिंग एंड ऑल। अब जब ये सेविंग जो है इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रही, तो फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सभी समझते हैं, बड़ी मशीनरी परचेज करना, वो सब चीजें नहीं होंगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई मशीनरी नहीं खरीदेगा, कोई कुछ नहीं खरीदेगा। पीपल आर सेविंग बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। ऐसा कब होगा बताओ। क्योंकि उनको लगता है, जब लोगों को ये लगता है इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू राइज, व्हेन पीपल आर expecting the interest rates to increase, and people think that interest rates are going to increase, रिस्क, ठीक है, ठीक है, रिस्क तो क्या ही है, इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज सेम होती हैं। जब गवर्नमेंट कर्जा लेती है, जब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है, बैंक से बोरो करती है, तो कर्जा लेती है। कर्जा लेती है तो क्या देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच देती है। अब लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में बॉन्ड्स के प्राइस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा की लालच में लोग अभी अपने पैसे नहीं फंसाना चाहते। मेरे को लगता है कि गोल्ड का रेट जो है अभी ज्यादा होगा, ठीक है, तो मैं अपना गोल्ड तब बेचूंगा। बट यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये है कि मेरे पास पैसे हैं, I don't want to block my money at a rate of interest which is likely to rise. Today it is 6%. I am expecting that in the future it is going to be 9%. Then only I would buy. अब डिफ्लेशन नहीं, मतलब डिफ्लेशन नहीं है यहाँ पे, ये मान लो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, जब लोगों को ये लगने लगता है, तो फिर जो बाकी के लोग होंगे जिन्होंने बॉन्ड्स रख रखी होंगी पहले से, पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, अब कोई बॉन्ड्स अगर ले नहीं रहा और बॉन्ड्स मार्केट में ज्यादा हो जाएंगी, पीपल विल स्टार्ट सेलिंग दी बॉन्ड्स, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, होगा कि नहीं। भाई मैंने एक फोन लिया, वो फोन 1 लाख रुपए का लिया था, आज वो 90,000 रुपए का बिक रहा है। मुझे लगता है मार्केट में ये रूमर चल रहा है कि वो वाला जो फोन है 70,000 रुपीज का नया मॉडल आ जाएगा, तो मैं आज 90,000 का बेच दूंगा ना, कि चलो ठीक है 20,000 रुपए बच जाएंगे, आई विल बी एबल टू सेव। पीपल विल स्टार्ट सेलिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। अभी कोई घाटा नहीं हो रहा, क्योंकि जितने पैसे मिल रहे थे उससे ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो पीपल विल स्टार्ट सेलिंग दी बॉन्ड्स in the hope that new bonds will come at a higher rate of interest। तो मैं 6% वाली बॉन्ड में पैसे लगा के बैठा हूं, बॉन्ड पे क्या होगा, अब बॉन्ड का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा,
होगा कि नहीं, कि इतनी सारी बॉन्ड्स हो जाएंगी तो पीपल विल स्टार्ट सेलिंग बॉन्ड्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अगला गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा पैसे बोरो कर रही होती है तो नई बॉन्ड्स आएंगी। अब अगर मेरे, देखो फनी एग्जाम्पल्स हैं या कुछ भी हैं, मेरे 1000 बाल हैं, ठीक है, अगर मेरा बाल 500 बाल कर्जे में डूबे हैं, 600 बाल अगर मैं कर्जे में डुबाऊंगा तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। अगर सरकार का, निर्मला मैडम का बाल जो है केश निखार में नहीं कर्जे में डूबा है मान लो, अब वो और कर्जा लेने की अनाउंसमेंट जैसे ही करेगी सरकार, लोगों को ये दिख रहा है कि सरकार को स्टेट्स को पैसे देने के लिए 2,50,000 करोड़ रुपीस बोरो करने पड़ेंगे, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। मेरे पास अगर कैश होगा तो निर्मला सीतारमन मैम बोलेंगे कि 6% पे ले लो, मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 6% पे तो मैं ऑलरेडी सरकार को कर्जा दे के बैठा हूं, मैं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना चाहता हूँ, सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सरकार बढ़ाएगी तो बॉन्ड्स का प्राइस गिर जाएगा ना, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, सस्ते में देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड्स जो होती हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे होती हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9 है ना तो बॉन्ड्स पे हम 9100 रुपीज़ देते हैं और हमें 10,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। एक्चुअल में ये रेट 11.11% समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। बॉन्ड्स फेस वैल्यू है 10,000, लेकिन जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है वो होती है 9%। 5 ईयर्स के बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर होगी, इसका प्राइस होगा 10,000 रुपीज़, सरकार आपसे बॉन्ड वापस ले लेगी और आपको 10,000 रुपीज़ दे देगी, जबकि आपने जब इन्वेस्ट किए थे आपने सिर्फ 9100 रुपीज़ इंटरेस्ट इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉन्ड्स आर सेलिंग लाइक स्क्रैप, जो बॉन्ड 9100 रुपीज़ पे मैंने परचेज करी थी एज एन इन्वेस्टर, वो मुझे शायद 8700 रुपीज़ पे बेचनी पड़ेगी। समझ में आया, घाटे में बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को ये लग रहा है कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने जा रहा है, 6% वाली बॉन्ड अगर हम परचेज करेंगे तो हम लॉस में परचेज करेंगे। अब ये लोग सस्ते में परचेज करेंगे, जब ये बॉन्ड मैच्योर होगी तो बायर को तो मिलेंगे 10,000 रुपीज़, क्योंकि सरकार ने वादा किया है। लेकिन कुछ लोग मैच्योरिटी के लिए होल्ड नहीं करते इन्वेस्टमेंट को, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए, मतलब कि सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। क्लियर? डन? क्लियर है सबको? बताओ फटाफट। कुछ लोगों को नहीं क्लियर होगा क्योंकि अभी तो मैंने पूरा बताया ही नहीं, क्योंकि एक फिनोमिना होता है यील्ड। यील्ड मतलब यील्ड क्या है मेरी सिक्योरिटी पे। हैव आई एक्सप्लेन्ड यील्ड इन दिस बैच? नो। यील्ड इज, अगर मैं 10,000 रुपये वाली सिक्योरिटी 9100 में परचेज करता हूँ और मुझे इन रिटर्न मिलते हैं 900 रुपीज़, जो कि फिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी ये सिक्योरिटी परचेज करेगा उसे 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी, आई एम दी ओरिजिनल बायर। ओरिजिनल बायर को ये बोला गया कि ये सिक्योरिटी कुछ इस तरह से बिक रही है, ओरिजिनल बायर ने इसे ऐसे परचेज करा। अब क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन थी तो क्या हुआ, लोगों को लग रहा है कि लिक्विडिटी ट्रैप मींस पीपल एक्सपेक्ट, सिंपल टर्म्स में पीपल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट्स टू राइज। सोनू आपको समझ में आ रहा है? पीपल एक्सपेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। इन सच अ सिचुएशन इफ आई एम इन नीड ऑफ मनी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई एम गोइंग टू सेल इट टू दी नेक्स्ट बायर। नेक्स्ट बायर सेज कि देखो भैया आपकी जो सिक्योरिटी है उस पर तो सिर्फ 9100 पे 900 रुपीज़ मिल रहे हैं, बट पीपल आर सेइंग, पीपल आर एक्सपेक्टिंग, एंड इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट बायर टेल्स मी कि आई हैव एन ऑप्शन, मे बी नेक्स्ट मंथ देयर विल बी एन ऑप्शन, गवर्नमेंट विल गिव मी
लेट्स से 8600 रुपीज़ की सिक्योरिटी मैच्योरिंग टू 10,000 रुपीज़. दिस इज what he is expecting. People expect the interest rates to rise. कहाँ 10,000 रुपये पे 8600 पे 10,000 मिलेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है ना. 8600 रुपये लगाओ, 8600 रुपीज़ लगाओ और 1400 रुपीज़ अर्न कर लो, क्योंकि मिलेंगे तो 10,000 है ना. 8600 आपने इन्वेस्ट करे और आपको मिल गए 14. अगर इसको डिवाइड करोगे 1400 डिवाइडेड बाय 8600, ये ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन कंपैरिजन टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जिसको मैं बेचना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा है कि देखो ये जो नया वाला जो बायर आए, ये जो नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आएंगी ये कुछ इस तरह से आएंगी. तो वो मुझे बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी आज लूँगा तो मैं इस रेट पे ही लूँगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8600 रुपीज़ दे दूंगा और मुझे मिलेंगे 10,000 रुपीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो वादा किया है, यानी कि उसको 1400 का फ़ायदा. अब ये जो फ़ायदा है, when there is a difference, write down if you want to, the difference between the face value and the value at which a customer is purchasing the bond and the actual market value. The difference between the face value क्या है 10,000 रुपीज़, and the market value क्या है 8600 रुपीज़. तो इस केस में यील्ड ज़्यादा हो गई, कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो यील्ड ज़्यादा हो गई. अब अगर अगला बायर जो है, अगर ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन चलती रहेगी तो इसका ये सेकंड बायर है, ठीक है, थर्ड बायर इससे खरीद रहा है, इसको लगा कि ओ मैंने गलती कर दी, तो अगले बायर को लग रहा है कि सरकार 8,000 रुपये लेगी और 10,000 रुपये देगी, थर्ड वन, ठीक है. सिचुएशन और ज़्यादा, लिक्विडिटी ट्रैप और ज़्यादा डीपन हो गया. थर्ड वाले को लग रहा है कि सिचुएशन जो है कुछ ऐसे होगी, गवर्नमेंट जो है 8,000 रुपीज़ लेगी और बदले में 10,000 रुपीज़ दे देगी. तो ही वॉन्ट्स द सेकेंड बायर टू बाय हिम इन दिस मैनर, टू सेल हिम. ही वॉन्ट्स द थर्ड बायर वॉन्ट्स द सेकेंड बायर टू सेल दिस सिक्योरिटी विच ही हैड परचेज्ड फ्रॉम द फर्स्ट वन इन दिस मैनर. तो यील्ड और बढ़ गई ना, यहाँ पे 2,000 रुपये मिल जाएंगे 8,000 रुपये लगा के, यील्ड बढ़ती चली गई. यील्ड क्या है, मतलब उस पैसे पे कितनी यील्ड मिल रही है, कितनी उपजाऊ शक्ति हो गई उस पैसे की, हिंदी में बोलें तो, ठीक है. 8,000 रुपये पे 2,000 रुपये, ये क्या है यील्ड. यहाँ पे 8600 पे 1400 रुपीज़ यील्ड, यहाँ पे 9100 पे 900. ये तो तब था जब इंटरेस्ट रेट हाई थे, बट लिक्विडिटी ट्रैप में इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं अभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज होगा, मैं तब पैसा लगाऊंगा. अब इस सिचुएशन में क्या होता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता. अब वो इन्वेस्ट नहीं करता तो आगे किसी को लोन नहीं मिलता. जब उसे लोन नहीं मिल रहा तो वो पार्ले जी कंपनी जो है या टाटा जो है प्रोड्यूस क्या करेगा. अब जब वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सैलरीज नहीं मिलेंगी. ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाता है कि लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए हम. पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम बोरो नहीं कर रहे, लेकिन हम सरकार को नहीं दे रहे. वो बेचेगा क्यों लॉस करके, वो बेचेगा क्यों लॉस करके. देखो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते. अगर आज किसी को पैसे ज़रूरत है, हर कोई देखता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब जो मैं फिनोमिना बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप सबको समझ में आ जाएगा. एक कार है होंडा सिटी, ठीक है, उसके ऑनर को ये पता है कि 2020 में नया मॉडल आ जाएगा तो पुराने वाले मॉडल की वैल्यू डाउन हो जाएगी. 2020 के बाद 21 आएगा तो नया मॉडल आ जाएगा. अब एक स्टेज के बाद तो वो कार बेचेगा ना, क्योंकि उसे नई कार लेनी है. इस इन्वेस्टर के केस में वो ये सोचता है कि काश मैं इसकी जगह गोल्ड परचेज करता. मैं अगर खड़ा रहूँगा, मैंने अगर कोई गलत एसेट ले लिया है बट मैं इन्वेस्टमेंट के लिए हूँ, मैं धंधा करने के लिए हूँ, बिजनेस करने के लिए हूँ, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि नहीं जब इसका लॉस रिकवर होगा, जब इसका प्राइस 10,000 मिल जाएगा मैं तब करूँगा. क्योंकि 10,000 तो मिलेगा 5 साल के बाद. हो सकता है कि मैं इस पैसे को बार बार रिसाइकल करके 5 साल में 50,000 अर्न कर लूँगा. अगर मेरे पैसे अच्छे एसेट में लगे हैं तो मैं उतने में कर लूँगा. वाई वुड आई बी इन अ ट्रैप.
ये तो संक कॉस्ट हो गई ना। संक कॉस्ट होता है जो पैसा डूब गया है, ठीक है। संक कॉस्ट को सोच के कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर एक बुक सेलर है, उसके पास पुराना एडिशन है बुक का, अब एक स्टूडेंट वहां पे जाता है, वो बोलता है कि आपके पास में इसका पुराना एडिशन है, 600 रुपीज का ये पुराना एडिशन था, लेकिन अब तो नया एडिशन आने वाला है, 2 ही महीने रह गए बस। तो बुक सेलर क्या बोलेगा कि अच्छा ले जाओ, 20% डिस्काउंट पे ले जाओ, यही बोलेगा ना। या वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं जो है मैच्योरिटी तक इसकी वेट करूंगा कि ये कस्टमर ने मुझे बोला था वो लेने आएगा इसको। पैसे फंसा के रखने वाली बात है। आप समझ में आया? बुक के केस में डिफरेंट है। रियलिटी में सोचो कि अगर आपने एक 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, आपको पता है कि आने वाले टाइम में वो 8600 रुपीज रह जाएंगे, फिर शायद 8000 रुपीज रह जाएंगे, तो आप बेटर है ना कि आप उसे 9100 रुपीज में बेच के कटते बनो। ये 9100 रुपीज आप किसी ऐसे एसेट में लगाओ जो आपको बेटर रिटर्न दे सकता हो, या फिर उसी से ही शादी करके रह जाओगे। मतलब समझ रहे हो? यस, समझ में आया प्रतिमा? इज इट क्लियर? ये सब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यही कहती है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस एट विच यू आर परचेजिंग इट। प्रतिमा अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता सकते हो। Are we done? ये है बॉन्ड यील्ड का फिनोमिना। जैसे जैसे डिमांड ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज, डिमांड ऑफ बॉन्ड इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। बॉन्ड की डिमांड अगर डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे यील्ड इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब बॉन्ड की डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई बराबर है, तो प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरेगा यानी कि डिनोमिनेटर कम होगा, और फेस वैल्यू तो फिक्स है। फेस वैल्यू तो सरकार ने कर रखा है, उतनी मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो इसे, ये सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप क्यों कहा जाता है? लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब कैश बहुत सारा है, अब हम कैश में ही फंस गए हैं। संक कॉस्ट होता है डूबा हुआ पैसा। संक कॉस्ट है जैसे कि मैंने अगर 5 साल यूपीएससी में लगा दिए तो वो मेरी संक कॉस्ट है। अब प्रिजनर्स डिलेमा सुना है? प्रिजनर्स डिलेमा या फिर गैम्बलर्स डिलेमा। गैम्बलर्स डिलेमा इज अ बेटर टर्म हियर। गैम्बलर्स डिलेमा क्या होता है? गैम्बलर सोचता है कि मैं 10,000 करोड़ तो हार ही गया हूं, 10,000 रुपये तो हार ही गया हूँ, 11 लगा देता हूँ, क्या कुछ चला जाएगा। फिर वो सोचता है कि मैं 11 तो हार ही गया हूँ, 12 लगा देता हूँ, क्या चला जाएगा। फिर वो सोचता है कि मैं अब इतना सब कुछ लगा चुका हूँ तो द्रौपदी ही लगा देता हूँ। ये है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को देख के कभी कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? संक कॉस्ट R&D जरूरी नहीं है कि सभी तरह की R&D हो। कभी कभी एक वैक्सीन बनाने में इतने सारे साल लगा दिए, ठीक है, रिसर्च करते रहे। थॉमस एल्वा एडिसन, अगर वो ये नहीं सोचता कि मैंने इतने साल लगा दिए अब तो मैं बल्ब इन्वेंट करके ही जाऊंगा, तो जो साल लगाए थे वो संक कॉस्ट हो जाते। एक यूपीएससी एस्पिरेंट ये सोचता है कि मैंने 5 साल लगा दिए अब तो मैं रिजल्ट लेके ही जाऊंगा, 6वां साल, 7वां साल, 8वां साल, ये संक कॉस्ट हो जाती है। समझ में आया? संक कॉस्ट को देख के कभी भी आपको ये देखना चाहिए कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। क्लियर? बिजनेस में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते टाइम ये सोचा जाता है। प्रवीण, इज इट नॉट क्लियर? फैक्टर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। फैक्टर्स क्या होंगे बॉन्ड को इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने वाले? डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? ही इज ट्राइंग टू आस्क दैट। डिटर्मिनेंट्स,
समझ में आ गया। वर्सेस मैं कंपेयर करूंगा ना कि मैंने 2019-20 में अपने पैसे बॉन्ड में लगाए थे, 10,000 के रह गए 8600, ठीक है, 2021 में 8600। अब मैं ये सोचूंगा कि आगे की न्यूज़ क्या है, क्या 8600 से ये 12,000 होने जा रहे हैं या फिर ये 8,000 होने जा रहे हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन होगी 2021 में। फिर इस सिचुएशन को अगर ये 8,000 होने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे हाल देखूंगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने 12 लाख की ले रखी है, 10 लाख की वो प्रॉपर्टी ले रखी है, क्या वो 8 लाख की होने जा रही है? 10 लाख की प्रॉपर्टी क्या वो 8 लाख की होने जा रही है या फिर 12 लाख होने जा रही है? तो मैं उस हिसाब से माइग्रेट करूंगा। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर किसी ने गोल्ड ले रखा है जो 10,000 का था, क्या वो 8,000 का होने जा रहा है या 8,500 का या फिर 12 का। समझ में आया फोरकास्टिंग। फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, सरकार जितना ज्यादा कर्जा लेती जाएगी, द मोर द बर्डन, the more the burden on the sarkar, the more the burden of debt on the government, the worst it would be. अब लिख लो liquidity trap, how to get out of liquidity trap। अब ये सारा कुछ अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो पढ़ के समझना एक बार। liquidity trap is a situation, please write down, liquidity trap is a situation in which interest rates are very low and savings are very high। देखो यहाँ पे लिखना चाहिए वैसे सेविंग रेट्स, बट मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ सेविंग्स आर वेरी हाई, ठीक है। तो आप लोग जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया सेविंग्स लिखो, तुम फिर सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करने लग जाओगे नहीं तो। एंड सेविंग्स आर वेरी हाई, making the monetary policy ineffective, making the monetary policy ineffective, and savings are very high, making the monetary policy ineffective। In the situation, full stop, making the monetary policy ineffective। ओके अनिकेत, मैं बता देता हूँ, पहले इसको लिख लो। मॉनेटरी पॉलिसी किस पे काम करती है? इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, कि लिक्विडिटी पे खेलती है। मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी पे खेलती है ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, बढ़ा दो, कैश की सप्लाई कम कर दो, इंक्रीज कर दो। बट यहाँ पे तो कैश ऑलरेडी है, फिर भी लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। यानी कि आरबीआई जो है रेपो रेट क्या करेगा? आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप है। लोग कैश इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, वो तब इन्वेस्ट करेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, लोगों को फिर भी नहीं लगता कि लोग आगे आए, ठीक है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, फिर भी नहीं होगा। अब आगे समझो, ठीक है। तो in the situation of a liquidity trap, consumers choose to avoid bonds and keep their funds in cash. In the liquidity trap, consumers choose to avoid investing in bonds and keep their money in cash with themselves। Because
of the prevailing belief, because of the prevailing belief because of the prevailing belief that because of the prevailing belief that interest rates could rise soon, उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग बिलीफ दैट इंटरेस्ट रेट कुड सून राइज. Because of the prevailing belief that interest rate could soon rise. ठीक है, अगली एक लाइन छोड़ के लिखो. Since the interest rates have Since the interest rates have an inverse relationship, since the interest rates have an inverse relationship with the price of the bond, ठीक है, interest rates have inverse relationship. Interest rates have inverse relationship with the price of the bond. मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है, कॉमा many consumers with many consumers would not want to hold an asset, hold a bond. Many consumers would not want to hold a bond whose price is going to decline. Clear? Many consumers would not want to hold a bond whose price is going to decline. अब जैसे मैंने मान लो कि ये गोल्ड की रिंग है, अब ये तो चलो पहन रखी है, दिस इज समथिंग विच इज अ वियरेबल. बट इफ आई एम अ रैशनल इन्वेस्टर, मुझे पता है कि इसका अगला मॉडल वॉच का आने जा रहा है, या मुझे लगता है कि गोल्ड अब मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखा है, ये गिरने वाला है, तो क्या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा. मैं तब इन्वेस्ट करूंगा ना जब वो ऑलरेडी गोल्ड का प्राइस जो है लोएस्ट एब टच कर चुका होगा, क्योंकि तब जब मैं सस्ता परचेज करूंगा फिर मुझे बाद में जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो मुझे फायदा मिलेगा. ठीक है, और आगे लिखो, एट द सेम टाइम द एफर्ट्स ऑफ आरबीआई, फुल स्टॉप के बाद, एट द सेम टाइम the efforts of RBI to increase economic activity are hampered as RBI is unable to lower the interest rate further. At the same time, the efforts of RBI to lower the interest rate further are hampered as
they are unable to lower the interest rates further. At the same time, the efforts of RBI to increase the economic activity are hampered. इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? इंटरेस्ट रेट को लोअर करना होता है. अब अगर आरबीआई ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट को लो कर देगा तो फिर तो जो मार्केट सोच रही है वो बात सच हो जाएगी, है ना. मार्केट क्या सोच रही है कि अभी गिरेंगे प्राइस, फिर बढ़ेंगे, प्राइस इंक्रीज होने चाहिए. अब अगर पहले से लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी में और पैसे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो करने से क्या हो जाएगा? कुछ होगा? इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी जीरो है तो लोगों को लगेगा और राइज होगा अभी, तो तब पैसे इन्वेस्ट करेंगे. जिगसॉ पजल हो गया ना ये तो, कि मतलब सी सॉ पैटर्न में हो गया. अगर अब ऐसे टाइम पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को और ज्यादा गिरा देगा, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना कर लोगे? आधा परसेंट, 0.5%. अब लोग फिर भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को लग रहा है अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए. इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कैसे? जब कोई बोरो करेगा, जब कोई लैंड करेगा, कोई इन्वेस्ट करेगा, पैसे की स्कैरसिटी होगी. लेकिन पैसा तो लोगों के पास है. इसका नाम ही है लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी के ट्रैप में फंसी हुई एक इकोनॉमी. समझ में आया? आफ्टर रेट कट, ओके. At the same time, the efforts of RBI to increase economic activity are hampered as they are unable to lower interest rates further to incentivize investors and customers. As they are unable to lower the interest rates further, as they are unable to incentivize the investors. अब अगर investors, as they are unable to incentivize the investors and customers. Yes. Further, as they are unable to incentivize the investors and customers. अब अगर आप इंटरेस्ट रेट को लो कर दोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो? जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसको भी आप रोक दोगे, बैठा दोगे, क्योंकि उसे लगेगा कि इतने कम पैसे पे इन्वेस्ट करूं, मैं नहीं करता इन्वेस्ट. ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी. इसके और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हैं. जब कस्टमर को ये लगता है कि अभी पैसे सेव कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उनको लगता है कि अभी पैसे सेव कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो अभी खर्चना बंद कर देते हैं. जब वो पैसे खर्चना बंद कर देते हैं तो जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, उसको लगता है जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो तो बिक नहीं रहा. ठीक है, सारा कुछ इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है. अनिकेत, ये क्वेश्चन को ना मैं ये कैपिटल मार्केट में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं. ठीक है, कैपिटल मार्केट. डन. सो इज दिस क्लियर? Which is more effective, monetary or fiscal policy? In recent decades, monetary policy has become more popular because monetary policy is set by the central bank and therefore reduces political influence. यहाँ पे ऐसा होता नहीं. Politicians may cut interest rates in desire to have a booming economy before a general election. ऐसा होता है इंडिया में, होता है ना? This is what is happening. इंडिया हैज़ फेस्ड सच अ सिचुएशन. इन बिटवीन ये सिचुएशंस आती रहती हैं, बट फिनोमिनल लेवल पे ये सिचुएशन हुई थी यूएसए में आफ्टर 2007-8 में. 2007-8 में क्या हुआ? फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट पहले किया 1%, 1.5%, फिर 1%, फिर 0.5%. अब इन्वेस्टर सेवर जो है, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे. वो कहाँ जाने लगे? वो यूएसए से निकल के इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे. ठीक है, क्योंकि यूएसए एक ओपन इकोनॉमी है. अब वो पैसे लेके आते थे हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे. समझ में आया? इससे इंडिया का स्टॉक मार्केट बूम करने लगा. 20,000, 21,000, 25,000, 30,000, सेंसेक्स ब्रीचेस 35,000 मार्क. यूएसए में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था. एंड यूएसए वॉज वरीड कि ये कंट्रीज को इन कंपनीज को कैसे रोका जाए. यूएसए कंपनीज को लोन देता था लेकिन वो लोन लेके चाइना में इन्वेस्ट कर देते थे. यूएसए की डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम हो गई. क्लियर?
इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिला अभी। इंडिया में ऐसा देखने को मिला जब अब यहाँ पे सेवर कौन है, बैंक। अब अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, बट बैंक जो है टाटा अदानी अंबानी को लोन दे नहीं रहा और टाटा अंबानी अदानी लोन ले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनकी बैलेंस शीट में पहले इतने सारे लोन थे, चलती चलती इकोनॉमी को पंचर कर दिया मोदी जी ने डीमोनेटाइज करके। तो बैंक्स को लगा लोगों ने सारा पैसा बैंक्स के पास दे दिया, बट बैंक्स आगे इसे टाटा अंबानी अदानी को देने को रेडी नहीं है। ये लिक्विडिटी ट्रैप तो नहीं है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी ट्रैप लोकलाइज्ड इन अ बैंक, लोकलाइज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर। कैपिटल मार्केट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अनिकेत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो अभी के लिए बॉन्ड, आज इन स्टूडेंट्स को थोड़ा एब्जॉर्ब करने दो, आगे ये चीज़ कवर हो जाएगी। अब समझ में आया, ये एक टॉपिक था जिसमें थोड़ा हमें टाइम लगा, बट दिस टाइम विल बी सेव्ड व्हेन वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक द नेक्स्ट टाइम इन दी फिस्कल पॉलिसी। बॉन्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अदरवाइज। क्लियर? क्लियर है? सो अनदर क्रूशियल डिफरेंस, और ये सारा कुछ तो खुद पढ़ ही लोगे, इजी है ये सब। There are two aspects to this debate: the nature of the relationship if one existed and the direction of casualty. The relationship between inflation and growth remains a controversial one in both theory and empirical findings. Originating in the Latin American context in the 1950s, the issue has generated an enduring debate between structuralists and monetarists. The structuralists believe that inflation is essential for economic growth, whereas monetarists see inflation as a disadvantage to economic progress, detrimental to economic progress. There are two aspects to this debate: the nature of relationship if the one exists and the direction of casualty. Casualty growth की होगी, growth में नुकसान होगा या इन्फ्लेशन का नुकसान होगा या फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये देखना ज़रूरी होता है। क्लियर? सो दिस इज देयर, just 1 minute. So this is there, right? On the other hand, developing countries are more vulnerable to, अब यहाँ पे one by one पढ़ते हैं, the harmful effects of inflation are not universal but appear only over the threshold level of inflation. It is argued that the developed countries do have a very well developed financial markets and less government interventions in goods markets. Such economies are mostly demand driven. Developed countries do have very well developed financial markets, less government intervention, यानी कि free economy है. Such economies are mostly demand driven, in which case stimulus to demand results in rising prices and a clear versus kind of situation is observed at low level of inflation. ठीक है, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप्ड होने की वजह से अगर सरकार वहाँ पे स्टिमुलस देती है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कुछ कदम उठाती है, तो वो चीज़ें बैकफायर कर देती हैं। कैसे? राइजिंग प्राइजेस की फॉर्म में प्राइजेस राइज हो जाते हैं, लोग खरीदना कम कर देते हैं और क्लियर एक पैटर्न दिखता है कि अगर आप पैसे की सप्लाई बढ़ाओगे, ग्रोथ इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ को इंक्रीज करने के लालच में। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। क्लियर ट्रेड ऑफ इज ऑब्जर्व्ड एट लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन का लेवल लो हो जाएगा तो भी ग्रोथ गिरेगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग है, डेवलपिंग कंट्रीज में कम। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू सप्लाई शॉक्स। क्यों? हमारे यहाँ पे सप्लाई पैटर्न्स, अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ये सब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉजिंग हाई वेरिएबिलिटी इन इन्फ्लेशन एंड डिस्टर्ब द कंजम्पशन। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा एंड प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये जो चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू सप्लाई शॉक्स। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में दे आर डिपेंडेंट ऑन डिमांड, ठीक है। दे स्टिमुलस टू डिमांड रिजल्ट्स इन राइजिंग प्राइजेस एंड अ क्लियर ट्रेड ऑफ इज ऑब्जर्व्ड एट लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। उनके वहाँ पे डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी है। सप्लाई होती रहेगी, सप्लाई शॉक्स कम होने चाहिए। कभी प्याज उगाया नहीं, कभी मॉनसून फेल हो गया, ठीक है, कभी प्याज की स्कैरसिटी हो गई, कभी शुगर की स्कैरसिटी हो गई, कभी किसी चीज़ की स्कैरसिटी हो गई, इसलिए इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होती रहती है, कंजम्पशन पैटर्न को डिस्टर्ब करती रहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ग्रोथ और इन्फ्लेशन में नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सप्लाई ऑलरेडी इररेटिक है, ठीक है। समझ में आया ये? यस, एड्रेस के लिए मेल आया जेवी से, तो आप मेल कर सकते हो, ठीक है। For your material that I had promised in about first week, in the short run, the relationship between growth and inflation is usually positive. Policies that raise output, for example, expansionary fiscal and monetary policies, also raise prices. Inflation is undesirable because it adversely affects some sections of population, especially the poor and those whose earnings are not indexed to prices. ये सारा कुछ जनरल है, इन्फ्लेशन ग्रोथ का नेक्सस और ये सब। थोड़ा सा इसे खुद पढ़ोगे, कितने लोगों ने पढ़ा है? मैन्युफैक्चरिंग, हर्ष, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही हम अपनी सप्लाई एराटिसिटी को, एराटिक सप्लाई को कम कर पाएंगे, सप्लाई शॉक्स को कम कर पाएंगे, अदरवाइज ये फिर चलता ही रहेगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अंटिल रिसेंटली, सेम जनरल सी चीज़ें, इसमें कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, प्रतीक एंड अदर्स जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, हो सकता है किसी को भी हो सकता है, ठीक है। ये मी नॉट मी किस लिए? Inflation could hamper economic growth mainly due to following reasons. Economies that are not fully adjusted to a given rate of inflation usually suffer from relative price distortions. कभी price कम या कभी ज़्यादा. Nominal interest rate मतलब interest rate which is inclusive of inflation are often controlled and hence real interest rate becomes negative. हमारे यहाँ पे अभी इंटरेस्ट को डीरेगुलेट कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। पहले होता था कि बैंक्स 7% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज कर सकते, और 7% इन्फ्लेशन होता था या 8% इन्फ्लेशन होता था, रियल रिटर्न कितना हुआ, रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, -1। गॉट इट? सो ये चीज़ें, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट लैग बिहाइंड इन्फ्लेशन, ये आप थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है, खासकर लास्ट लाइन, this you would be able to understand properly after we would have covered the exchange rate and other things. Okay, exchange rate, fiscal policy, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। real tax collections do not keep up with inflation. टैक्स कलेक्शन सरकार करती है 1,34,000 करोड़ रुपए, 1,34,000 करोड़ रुपीस।
बट उसमें से 10% इन्फ्लेशन माइनस हो गई, ठीक है, बिकॉज कलेक्शंस आर बेस्ड ऑन नॉमिनल इनकम्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर के 2019 के बेसिस पे सरकार ने ये कहा कि अगले साल 2020 में 1,34,000 tax would be collected, but that 1,34,000 tax when adjusted for the inflation of the present year would lead to lesser amount, actually lesser real amount left with the government. समझ में आया ये भी? ओके For both reasons, the fiscal problem is intensified by inflation and public savings may be reduced. This may adversely affect public investment. Public investment जहाँ जहाँ लिखा है मतलब government investment. तो दोनों रीजंस की वजह से फिस्कल प्रॉब्लम यानी कि फिनेंशियल प्रॉब्लम सरकार की इज इंटेंसिफाइड बाय इन्फ्लेशन एंड पब्लिक सेविंग्स में भी रिड्यूस्ड. गवर्नमेंट की सेविंग रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट विल बी द नेट बोरोअर, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्शन करी गई वो होनी चाहिए थी 1,50,000. इस साल का रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर 10% है उसको मिला के होना चाहिए था 1,50,000 टैक्स कलेक्शन, लेकिन रियल टैक्स कलेक्शन इन्फ्लेशन को मैचअप नहीं कर पाती. ठीक है, तो ये चीज़ है. थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन विद प्राइस स्टेबिलिटी एज द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का. द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इन्फ्लेशन consistent with maximizing growth attains importance. Zero inflation is also not favored because of the upward bias in measured inflation. Moreover, a target of zero inflation rate increases the level of sustainable unemployment. ये हमने फिलिप्स कर्व में पढ़ा था. ठीक है, जीरो इन्फ्लेशन टारगेट अगर हम लेके चलें तो सस्टेनेबल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी, फिर आउटपुट कम हो जाएगी. जीरो इन्फ्लेशन रेट होगा तो पीपल विल नॉट बी इंक्लाइंड टू वर्क बिकॉज दे वुड थिंक कि पिछले साल भी इतने ही मिलते थे, इस साल भी इतने ही पैसे मिल रहे हैं. समझ में आया? इसीलिए टारगेट ऑफ जीरो इन्फ्लेशन रेट is not favored because of the upward bias in the measured inflation. अब इस जो इन्फ्लेशन हमने मेजर करी है उसमें अपवर्ड बायस होता है कि अगले साल रेट और बढ़ेगा, वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ही चल रही होती है. तो प्राइस स्टेबिलिटी ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी का आज डोमिनेंट मतलब ही यही हो गया है कि विद अ मॉडरेट इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. ठीक है, बिल्कुल जीरो इन्फ्लेशन रेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, उसको फेवर नहीं किया जाता बिकॉज अपवर्ड बायस इज मेजर्ड इन दी मेजर्ड इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन को मेजर भी कर रहे हैं सीपीआई या बाकी चीजों के चलते. ओके अर्शिका, जो बायस का मतलब तरफदारी. ठीक है, बायस इन दी मेजर्ड इन्फ्लेशन. जीरो इन्फ्लेशन को फेवर नहीं किया जाता. ऊपर की ये माना जाता है कि अगली बार जो इन्फ्लेशन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी ही होगी, उसमें इंक्रीज होगी ही होगी. ये क्योंकि मेजरमेंट में ही हम ये मान के चलते हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं या जो भी सीपीआई इंडेक्सेस हमारे प्लान्ड हैं उसमें ये चीज़ साफ दिखती है. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है. चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग ग्रोथ अटेन्स इंपॉर्टेंस. कि 6% इन्फ्लेशन रेट पे कितना जीडीपी ग्रोथ होगा ये डिपेंड करता है आउटपुट गैप पे. अगर आउटपुट गैप से ज़्यादा पैसा, आउटपुट गैप को ब्रिज करने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पैसा डाला जाता है. यहाँ पे ये मान के ही हम चलते हैं. ठीक है, इस लाइन का सिंपल सी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, कि इसमें जीरो इन्फ्लेशन क्योंकि ना हो, हम चाहते हैं कि हम अपना आउटपुट गैप जिसपे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन जीरो के बराबर या मिनिमम जितना हो सकता है वो हो. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मिलते रहें. तो पैसा अगर रिलीज करना होता है, 6% इन्फ्लेशन हमें एक्सेप्टेबल है तो हम पैसा रिलीज करते हैं 7%. इन्फ्लेशन उतनी होगी कि 7% पैसे के लिए पैसा उतना रिलीज किया जाएगा कि इन्फ्लेशन 7% हो जाए. फिर हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस पैसे को प्रोडक्टिवली डाइवर्ट करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट या बाकी की चीज़ों में.
तो ये बायस का सिंपल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है. नाउ a target of zero inflation rate increases the level of sustainable unemployment. अगर हम जीरो इन्फ्लेशन रेट लेके चलें तो प्रोड्यूसर्स डीमोटिवेट हो जाएंगे, और प्रोड्यूसर्स यदि डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर वो लोग बाकी जो वेले लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हायर नहीं करेंगे और आउटपुट रिड्यूस कर देंगे. इसलिए और जो बाकी के जो रेट्स वगैरह हम लेके चलते हैं मेजर्ड इन्फ्लेशन में 6% हमें इन्फ्लेशन चाहिए, उसमें भी हम ये लेके चलते हैं. क्लियर है ये? अब इसको बाद में सुनना एक बार, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो बताना. लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन आउटपुट इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ, आउटपुट बढ़ाएं या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखें, ये जो ट्रेड ऑफ है वर्सेस काइंड ऑफ सिचुएशन आउटपुट versus inflation may exist at a very low levels of inflation. Output effects of this trade-off may be large. For instance, the median increase in the equilibrium unemployment rate associated with zero inflation rather than 3% inflation is more than 2 percentage points. यहाँ पे ये है output effects of this versus kind of a situation may be large. For example, मीडियन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अगर 7%, ठीक है, एसोसिएटेड विद जीरो इन्फ्लेशन रादर देन 3% इन्फ्लेशन इज मोर देन 2 परसेंटेज पॉइंट्स. यानी कि फिर जीरो इन्फ्लेशन रेट पे इन्फ्लेशन अगर हम जीरो टारगेट लेके चलते हैं तो इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट जो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है ऐसे टाइम पे भी जब आउटपुट गैप बिल्कुल जीरो हो तब वो इन्फ्लेशन का जो रेट है इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% हो जाएगा. यानी कि इन्फ्लेशन को जीरो टारगेट अगर हम मान के चलें तो एनालिसिस डेटा जो भी आज तक स्टडी किया गया उससे ये मैथमेटिक्स निकला कि अगर आप जीरो इन्फ्लेशन मान के चलते हो, आपकी इकोनॉमी में ऑर्डिनरली 10% अनएम्प्लॉयमेंट है तो जीरो इन्फ्लेशन के लेवल पे वो 12% हो जाएगी. अगर आप मॉडरेट इन्फ्लेशन मान के चलते हो 3% की तो आपकी इकोनॉमी में 10% ही अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा. ये 10% 10% अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक इकोनॉमी में होता ही है. इतने लोग औसतन लेवल पे, एवरेज लेवल पे बेरोजगार ही होंगे इकोनॉमी में. अब अगर हम इन्फ्लेशन को बिल्कुल जीरो लाने की बात करें तो 10% से बढ़कर 2% एवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, 2 परसेंटेज पॉइंट्स. Threshold is not fixed over time across countries. It is time varying and country specific. इंडिया में थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन 6% है, 4% है, किसी और कंट्री में कुछ और होगी लाइकवाइज. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और इसमें कुछ है नहीं आज ना, मतलब वही सारी चीज़ बार 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 बार. लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मीनिंग ऑफ टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिखो. Please write down meaning of the term macroeconomic stability. Macroeconomic stability meaning. A macroeconomic stability refers to a situation. A macroeconomic stability refers to a situation in which a national economy has minimized its vulnerability to the impact of external shocks.
ठीक है, समझ में आया? जब हम क्रूड ऑयल के प्राइस और ये सारी चीजें इनकी तरफ अपनी वल्नरेबिलिटी कम कर लेते हैं। राइट, अब इसके कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं इसके कि क्या मतलब है। ये तो बहुत ही ऑब्सक्योर सी, एब्स्ट्रैक्ट सी डेफिनेशन है। नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? The indicators of macroeconomic stability are प्राइस स्टेबिलिटी, नंबर 1 प्राइस स्टेबिलिटी। एक इकोनॉमी में जहां पे इन्फ्लेशन स्टेबल है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी समझ भी लो थोड़ा सा, एक ऐसा ग्राउंड है जिसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर ग्राउंड ही शेकी होगा तो मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं काम नहीं करना चाहूँगा कि क्या फ़ायदा, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करनी है, ठीक है, कि हमारी कंट्री की सरकार का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मूडीज़ की रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही तो नहीं है ना। अब मुझे पता ही नहीं कि इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा अगले साल। इज इट द राइट काइंड ऑफ एन एटमोसफेयर टू मेक द डिसीजन इन? अब जैसे यूपीएससी का सिलेबस बार बार चेंज हो रहा हो तो आप आओगे यूपीएससी में प्रिपेयर करने के लिए? नहीं आओगे, है ना। ये है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वो आपकी जो यूपीएससी की स्टेबिलिटी है वो क्या है? मैक्रो एकेडमिक स्टेबिलिटी। अब अगर कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है और एकदम से पता लगा सिलेबस चेंज हो गया, फिर पता लगा इन्फ्लेशन चेंज हो गई, फिर पता लगा एक्सपोर्ट का बिजनेस मैंने शुरू किया, रुपये की वैल्यू गिर गई, फिर रुपये की वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कम हो गया। दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ द क्लाइमेट in which the businessman or any economy would progress. Clear? तो fiscal ये inflation is one of the indicators. ठीक है, growth in real GDP. Second point, growth in real GDP. Third, changes in employment or unemployment. Current account volatility of the country. Current account volatility of the country. Current account volatility of the country. First point is stable inflation, stable rate of inflation. Stable rate of inflation is the first point. Clear? Then growth in real GDP, second point. Third point, changes in employment or unemployment. अगर एकदम से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, एकदम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है। देन हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट फिनेंसेस। हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट फिनेंसेस, गवर्नमेंट शुड नॉट बी बोरोइंग टू मच, ये मतलब है यहां पे। हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट फिनेंसेस। Health of the government finances. Last one, not the last one, another one, interest rate volatility. इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन कुछ ऐसे बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, राइट। इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी।
interest rate volatility, and exchange rate stability. Exchange rate stability. Exchange rate stable होना चाहिए, right? Exchange rate stability. Please write down. There is no single, अब ये हो गया, इसके आगे लिख लो, there is no single and quantitative definition of macroeconomic stability or stable macroeconomic framework. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है. फ्रेमवर्क क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये फ्रेमवर्क है यूपीएससी का, तो यूपीएससी के फ्रेमवर्क की क्या कोई डेफिनेशन है? नहीं. इट इज एज चैलेंजिंग एज द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. कभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कभी ऑप्शनल टफ हो गया, कभी कट ऑफ कम हो गई, कभी रिजर्वेशन, कभी कुछ. समझ में आया? तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी एनी सिंगल इंडिकेटर लाइक द क्रूड ऑयल प्राइस माइट थ्रो, सुनने की बात है, क्रूड ऑयल प्राइस माइट थ्रो ऑल योर कैलकुलेशंस आउट ऑफ गियर. क्रूड ऑयल प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाए, अभी तो रुपये की वैल्यू सही चल रही है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी, क्रूड ऑयल का प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो गया, तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट, सरकार का जो फॉरेन इंटरनेशनल अकाउंट्स का जो खाता है, अकाउंट है, वो क्या सही रहेगा? नहीं. इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इंडिया में, क्रूड ऑयल महंगा प्राइस होगा, पेट्रोल का, डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन और देयर इज नो कंसाइज लिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. समझ में आया? इट मीन्स फिजिकल डेफिसिट मस्ट बी लो, बट एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट. मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं? अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स can have an impact on macroeconomic stability. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के बाद और कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, मैंने सिंपल एक लाइन लिखवाई थी, देयर इज नो सिंगल there is no single and concise definition of monetary policy. उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया, अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है, which of the following factors can have an impact on मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इन्फ्लेशन के ही टॉपिक में ये सारी चीज़ें आ रही हैं. सारी चीज़ें जो है काफ़ी फ्लूइडिक हैं, तो कोई इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता. नंबर 1, क्रूड ऑयल, प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल. फॉर इंडिया, है ना? और exchange rate of dollar vis-a-vis rupee only नहीं, other currencies also. Exchange rate of dollar vis-a-vis other currencies with which India is dealing.
समझ में आया? अगर डॉलर का प्राइस बाकी एशियन इकोनॉमीज के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इवन दो इंडिया के रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, बट क्योंकि इंडिया का इन कंट्रीज के साथ में व्यापार है, इनकी करेंसी की वैल्यू अगर डाउन जाती है तो रुपये की करेंसी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। Exchange rate of dollar vis-a-vis other countries with which India is dealing. Clear? समझ में आ गया ये? Is this clear? Relationship clear to everyone? कितनों को नहीं क्लियर हुआ ये? प्लीज टाइप नो। देखो, अगर इंडिया का मान लो कि ये चाइनीज करेंसी है, ठीक है, चाइनीज से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट है इंडिया का, $60 बिलियन है। अब अगर चाइनीज़ करेंसी जो है वीकन हो जाती है डॉलर के कंपैरिजन में, चाइनीज़ करेंसी की वैल्यू गिर गई, लेकिन इंडिया का यूएसए को एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, इंडिया की करेंट वैल्यू की रुपये की वैल्यू 63 रुपीज़ पर डॉलर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू गिर गई और इंडिया इसको काफ़ी ज़्यादा रुपए पे करता है क्योंकि हम इनसे काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू भी, जिस कंट्री पे हम डिपेंडेंट हैं, अगर उस कंट्री की वैल्यू गिरती है तो हमारी वैल्यू भी गिर जाती है, ये मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक फैक्टर, मतलब जायज़ा लगाओ, थोड़ा सा समझो कि क्या क्या ऐसे और फैक्टर्स हो सकते हैं, खुद ब्रेन अप्लाई करो, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं 5-6 उनको अप्लाई करके देखो कि क्या क्या ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स के अंडर जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। Indian experience appears to support this view. In India, inflation has generally been kept under control. There have been 2 episodes, ये background सारा दे रखा है. It may be more realistic to choose tolerable levels of inflation rate and achieve the maximum possible growth given that rate by deficit financed public investment. Deficit finance मतलब monetization नहीं है, deficit को finance करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है borrow कर रही हो, ये चीज़ें आगे फिस्कल पॉलिसी में काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी। नो निधि, नहीं समझ आया? मैं वियर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, दिस इज अ फीमेल, ठीक है, दिस इज सिस्टर ऑफ एम, ठीक है, एम इज द फीमेल इज मैरिड टू M2। अब वियर्ड एग्जाम्पल है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों को एक बार में समझ आ जाना चाहिए। M2 इज मैरिड टू F2। नाउ M इज द ब्रदर ऑफ F2, ठीक है, ये ब्रदर है, B लिख लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ M2 इज अदरवाइज वेरी स्ट्रॉन्ग, M2 इज डोमिनेटिंग F2 द वाइफ, ठीक है, W। M2 एंडेड अप मैरिंग हिज सिस्टर टू B। अब M2 की पोजीशन क्या हो जाएगी? वल्नरेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, S। M2 is the brother of S and F2 is the sister of B। Venn diagram। तो M2 अगर वाइफ को डोमिनेट करेगा तो इधर B जो है S को डोमिनेट करेगा। अब ये समझ लेना, ठीक है। सॉरी बट आई हैव टू यूज दिस एग्जाम्पल, क्योंकि तुम लोगों को जब ये अच्छे वाले एग्जाम्पल नहीं समझ में आते तो ननद और साला साली वाले एग्जाम्पल समझ आ जाने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इंडिया को रख दूँ, यहाँ पे इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इंडिया इज एबल टू डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बट यहाँ पे चाइना है। अब अगर इंडिया चाइना से काफ़ी ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए के डॉलर की वैल्यू चाइना के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गई, तो क्या इंडियन रुपये की वैल्यू स्ट्रांग होगी?
माना कि पहले स्ट्रांग है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यूएसए को, तो हमारा रुपी स्ट्रांग है, बट क्योंकि चाइना जिससे हम काफ़ी ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है यूएसए के कंपैरिजन में, तो हमारे रुपए की करेंसी की वैल्यू भी गिर जाएगी। ठीक है, इसे धीरे आगे फिर से एक बार समझेंगे इसे जब हम करेंसी रेगुलेशन पे आएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, फिलिप्स कर्व। नाउ सम व्यूज एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सुब्बाराव वाज द प्रीवियस आरबीआई गवर्नर। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड ऑल। देखा निधि आ गया ना अभी ये ननद और बहू वाला और भाभी वाला रिश्ता समझ, वही करेंसीज में भी होता है। नाउ बोथ द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक वुड नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ लो steady inflation and consistent growth. Another former RBI गवर्नर सी रंगाराजन, इनका क्या कहना है, ये सारी चीजें इसमें और कुछ नहीं, पढ़ लेना गाइस इसको। किसी को कोई डाउट इस पीपीटी में? कल से मॉनेटरी पॉलिसी 3 फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नाउ द टाइम फॉर योर डाउट्स क्विकली। No, this example of mine hasn't got anything to do with reality, Shashi. Just to explain things. Yes, difference between stagnation and stagflation. स्टैग्नेशन के टाइम पे अर्शिका व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अदर्स ऑल्सो प्लीज आंसर। फॉरेक्स रिजर्व मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Extensive use of natural resources, yes, it can be one of the factors for monetary policy limitations. Yes, if you are generating money out of natural resources by excessively using them, so there will be a this will be a limitation of monetary policy. Stagnation may, what do you expect? Prices will be what? How will prices be? How will prices behave in case of a stagnation? Economy which is stagnating, people will not buy goods, producer will not produce goods, है ना? People will not buy the goods which have already been produced, prices will come down, right? Stability in the market is what you expect. But stagnation is an ironical situation when market is not moving, goods are not being produced, nothing is happening, still prices are rising. ठीक है, still the prices are rising. Clear? ये इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना? स्टैग्नेशन में प्राइसेस शुड गो डाउन, बट इन्फ्लेशन हो रहा होता है। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन ऐसा कब होगा? जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर दे, व्हेन प्रोड्यूसर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है, स्टैग्नेशन में प्रोड्यूसर लेड इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर, अब मैं इसका टेक्निकल रीजन बताऊं। स्टैग्नेशन में कंज्यूमर ने सप्लाई डिमांड कम करी 50% 50% के रिस्पॉन्स में पेसिमिज्म प्रोड्यूसर कम्युनिटी में पेसिमिज्म इतना ज़्यादा था कि उन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं किया।
उन्होंने 100% प्रोडक्शन बंद कर दी या 90% बंद कर दी. सो टेक्निकली stagnation would happen when demand goes down, when the supply goes down by a percentage more than the demand. ठीक है, when there is a disproportionate fall in the production in comparison to relative to demand. जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगी उनके दाम बढ़ जाएंगे. डिमांड कम है, उबर ओला ड्राइवर्स अपनी कार ही नहीं निकालेंगे. जो कार्स निकल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल हैं, इन्फ्लेशन हो जाएगी. एक तरफ तो स्टैग्नेशन है, कस्टमर आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ जो कस्टमर जो प्रोड्यूसर है वो अपने भाव बढ़ा दिए उसने, क्योंकि उसको पता है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है. कोरोना वायरस के कोविड-19 के चलते यही हो रहा है ना. है ना, मतलब अब अगर कस्टमर नहीं आ रहा हो, स्टैग्नेशन हो, तो दुकानदार को उसकी आरती उतारनी चाहिए. बट दुकानदार क्या हो रहा है, शरारती हो रहा है कि ठीक है अब प्रॉफिटियरिंग करते हैं, जो माल बचा है उसको महंगे में बेचते हैं. समझ में आया? स्टैग्नेशन, वही तो समझाया. स्टैग्नेशन नहीं, मैंने दोनों समझाए. अमिड स्टैग्नेशन देयर इज इन्फ्लेशन. एक रात की सिचुएशन लेते हैं. इन द नाइट टाइम व्हेन यू गेट ऑफ द बस ऑन द बस डिपो, ठीक है, आप ऑटो वाले पे जाते हो, सारी रोड स्टैग्नेटेड है, कुछ ऐसे समझना. ठीक है, ऑटो वाले से पूछते हो कि घर जाना है, कितने पैसे लोगे. ऑर्डिनरली वो 80 रुपीज़ लेता है, बट वो रात में 120 रुपीज़ लेगा. इन्फ्लेशन. Why inflation? Because he knows that there is limited supply of his product. So when the producer has cut down the supply by a percentage more than the decrease in the percentage of demand. स्टैग्नेशन के साथ में जब इन्फ्लेशन होती है तो ऐसा होता है. जीएसटी के टाइम मैंने एग्जाम्पल दिया था, 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी आया था तब ऐसा ही हुआ था. 30th of June 2017 तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज काम नहीं है. मतलब जो गुड्स बनाई जाएंगी वो ओल्ड मेथड के हिसाब से काउंट होंगी, इसलिए मोमेंटरीली वहाँ पे स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन देखी गई थी लास्ट क्वार्टर में. To get out of liquidity trap, will lowering of the prices or adoption of expansionary monetary policy be enough to attract people to spend the cash in the market they are holding with them? Solution of liquidity trap is, what is the solution of liquidity trap? People are expecting interest rates to be higher. Increase the interest rates. ठीक है, by a quantum leap. If the present interest rates are 5%, increase them to 12% in one go, so that there is no scope of rumor mongering in the market. Clear? बिडिंग में क्या होता है? बिडिंग होती है ना, अगर किसी बंगलो की बिडिंग हो रही होती है, ये बंगलो है, उसकी बिडिंग हो रही है, ठीक है, बोली लगाई जा रही है 10 लाख 1, 10 लाख 2, ठीक है, फिर किसी ने 10 लाख 50,000 बोला, फिर किसी ने 11 लाख बोला, तो लोगों को क्या इंडिकेशन जा रहा है? नहीं, अभी तो जो सेलर है उसको ये इंडिकेशन जा रहा है, जो इन्वेस्टर, जो मैं घर बेचने वाला हूं तो मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, वैसे मेरे पैसे बोरो करने वाला अगर इंच बाय इंच बढ़ा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को,
तो मेरे को लगेगा अभी और स्कोप है, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। इसलिए बेटर पता है क्या है, सीधा एकदम से 10 लाख से 15 लाख कर दो। एक बार बोली लगाओगे, कंज्यूमर को समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये और प्राइस नहीं बढ़ाएगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई और इंक्रीज नहीं करेगा, अब तो 15% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे डिपॉजिट करवाना ही अच्छा है। इंच बाय इंच बढ़ाओगे तो इंडिकेशन क्लियर नहीं जा रहा है ना। तो this is the way to come out of liquidity trap. People have money, they are not investing money. Money is not going here. If money will go here, it will get invested, production will start happening. We will come out of liquidity trap. Liquidity will get converted into investment. यही तो है ना, liquidity जो cash है उसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना है। अब इन्वेस्टमेंट पे तभी तब्दील होगी जब इंटरेस्ट रेट आप एकदम से ज्यादा दिखा दोगे कि चलो दो, अब बात खत्म करो। यस, whenever I mention RBI increasing or decreasing interest rate, it means the repo rate. इंटरेस्ट रेट को एकदम से क्वांटम जंप दे दो, धीरे धीरे मत दो। पीपल आर एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू राइज, उनको ये लगना चाहिए कि दिस इज दी ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू परचेज, टू इन्वेस्ट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। इररेजिस्टिबल ऑफर, समझ में आया? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब ग्रोथ, जब इन्फ्लेशन, मैंने ये अच्छे से समझाया था अंबिका, आपको आना चाहिए था अगर क्लास दोबारा से देखते। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि जब इन्फ्लेशन इज विद इन द रीजनेबल लिमिट, ठीक है, 6% इन्फ्लेशन का, 4% इन्फ्लेशन का टारगेट है, इन्फ्लेशन 3% है, तब आप मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड कर रहे हो कि चलो ठीक है पैसे ज़्यादा डाल देते हैं, ग्रोथ बढ़ने लगेगी। जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4 से ज़्यादा है, जो कि टॉलरेबल लेवल है, मिडिल टॉलरेबल लेवल क्या है 4%, इन्फ्लेशन है 5%, फिर भी आरबीआई सरकार के कहने पे सरकार को अकोमोडेट करता है कि ठीक है मैडम निर्मला सीतारमन, कोई बात नहीं, ग्रोथ नहीं आ रही तो हम फिर दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं, खतरा लेते हुए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी has surpassed, inflation has already surpassed this thing, the target level 4%, फिर भी आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करता है कि शायद ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, तब उसे अकोमोडेशन कहते हैं। बैंक में पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी, क्या ऐसा जरूरी है? यस, टू सम एक्सटेंट। Yes, Arushri, you are right. Okay, so this was all for today. See you at 8:30 for Indian polity class, guys. Done? Any other doubt? All right, so this was all, guys. Thank you.